Then we have seen the what is expected from you. Then this is the all we are supposed to understand. Okay, we started with the circular flow. Remember, this is very important part of your particular finance, this subject. Okay, because if they ask you something related to anything related to this chapters, okay, these are the 5 chapters, correct? Microfinance, small banking, retail banking, and startup. In these all 4 chapters, the banking is playing very important role. So the banking, why the role, why the banks came in existence, this is the reason basically to run the circular flow of money financial system. That's why the banks are still existing and they will be long lasting, supposed to exist in every economy. Then we have understood what is a bank basically, then what services are there. Then we have seen that in the bank afterward we have seen like microfinance means what, correct? So here we have understood like the poor people who are having a very marginal income, they are not even earning means having any kind of savings, or they are not even earning every day 500 rupees, less than that even. That kind of people are not having access to the banking. And as every person is looking for future always, so they like to save the money also, and some people are needed of loan. So that's why this microfinance scheme. So we have seen that 1961, from that year the microfinance started. The particular whole world milestone was founded by Yunus Muhammad Yunus sir, who is economics from Bangladesh. He has given a very good example of giving a loan to 42 women who are micro level women who are having a negligible income, but they are having a willingness to do something. So that's why he gave the loan to them, and they started making a bamboo and they started earning and they returned it. This is in this way, this was a milestone. Then afterward everybody given focus on this, and then it started expanding from 2006 onwards all over the globe. Okay, up to the 2006, the people who are doing this particular microfinance, they are doing on the basis of income earning, interest earning, and this way. Okay, it is not like financing kind of it. It is basically a private unit which is not even considered as a bank. Okay, so that too was thing. Then we have seen microfinance means what in short. आपको अगर किसी ने पूछ लिया तो याद रखना, माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, इंडिया को नहीं, हर एक डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करता है ईच एंड एवरी पुअर पर्सन के तक पहुंचने के लिए, फाइनेंस देने के लिए। और माइक्रो फाइनेंस क्यों यूज किया जा रहा है एज ए टूल? जिस किसी कंट्री में मीन्स एवरी डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप कंट्री दे हैव अ पॉवर्टी, करेक्ट? तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कंसेप्ट है, इसके थ्रू वो पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करेगा। ओके, एंड दिस माइक्रो फाइनेंस विल हेल्प द पुअर पीपल टू अपग्रेड देयर लिविंग स्टैंडर्ड। उनका जो रहने का, रहना सहना जो है, एजुकेशन है, हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए ये माइक्रो फाइनेंस हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लोगों के आप लोगों को डेफिनेशन बताए थे। तो जैसे कि मैंने बोला कि 2006 ऑनवर्ड्स ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रहा है इंडिया में, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो। और फाइनेंस स्टूडेंट होने के नाते आप फ्यूचर में किसी अगर बैंकिंग में काम कर रहे हो या फिर फ्यूचर में करना चाहोगे, सॉरी, तो ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है जिसके अंदर पैकेजेस भी अच्छे हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जल्दी टारगेट अचीव करना भी पॉसिबल है, क्योंकि हियर दिस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर रीचिंग टू पुअर पीपल। ओके, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो हमें समझना चाहिए एज अ फाइनेंस स्टूडेंट। ओके, जब हम माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं तो माइक्रो फाइनेंस ऐसे ही नहीं आया, यहाँ पे कुछ टूल्स है या फिर कुछ मॉडल्स है, जिस मॉडल्स के थ्रू हमने ये पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंस चला रहे, करेक्ट? तो इसमें हमने सबसे पहले ये कम्युनिटी बैंकिंग देखा। कम्युनिटी बैंकिंग मॉडल जो है ये कम्युनिटी बेस है, जो किसी एनजीओ का हैंड होल्डिंग करके वो पूरी तरह से धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बन जाएंगे।
ओके। और इनका एक ही ये रहेगा कि हम हमारे कम्युनिटी में ज्यादा लोन दें कि ताकि हमारी कम्युनिटी के पैसे हमारी कम्युनिटी में ही सर्कल हो। ओके, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। लाइक मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, इस्लामिक है, फारसी का मैंने जोरास्ट्रियन बैंक का आपको एग्जांपल दिया था, करेक्ट। देन कोऑपरेटिव मॉडल, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कोऑपरेटिव मॉडल इंडिया में हमारा एक ह्यूमन राइट है। और ये बहुत ही इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इन कोऑपरेटिव सेक्टर। और यहाँ पे कोऑपरेटिव में भी हम देखेंगे तो महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लीडिंग, और उतने ही फ्रॉड सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव के महाराष्ट्र में ही है, स्पेसिफिकली इन बैंकिंग सेक्टर। एंड जो आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है वो है मिल्क प्रोडक्शन, जो पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट इंडिया कंप्लीट करता है, एंड दैट कंप्लीशन इज गोइंग थ्रू कोऑपरेटिव। रिमेंबर दिस, बहुत बड़ा लर्निंग है ये, कि पूरे दूध का जो रिक्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है। और उसमें सबसे बड़ी कंपनी हमारी अमूल, जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये जो कंपनी है मिल्क यूनियन, ये भी एक कोऑपरेटिव स्टार्ट हुआ था। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द नेम, वर्गीस कोरियन, ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट। तो ये कोऑपरेटिव ही था। तो मीन्स कोऑपरेटिव के थ्रू वी हैव सेट अ मेनी मॉडल्स। कोऑपरेटिव में और एक है हिप्को करके एक कंपनी है, फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कंपनी, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, who is giving fertilizer to all the farmers at the marginal price. Okay, तो ये भी एक है कि ये बहुत पुराना है। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव में जो लोग का सेम एम है वो साथ में आके ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन ग्रामीण बैंकिंग, ये जो कंसेप्ट है यूनुस सर ने लाया था, मोहम्मद यूनुस सर, उन्होंने उनके बांग्लादेश में ये कहा था कि ये ह्यूमन राइट है कि हर किसी को क्रेडिट मिले, क्योंकि उनका बिलीव था हर पुअर इंसान के पास कुछ न कुछ स्किल है जो अनयूटिलाइज है, अगर उसके लिए हम क्रेडिट देंगे तो वो पक्का उससे कुछ न कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कमाएगा। और ये जो रहेगा ये पर्टिकुलर ग्रामीण बैंक है वो लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा, और सेंटर भी रहेगा वो लिमिटेड लोगों को ही लोन देगा। ये एक उनका बिलीव था। देन बैंक गारंटी, ये थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, जो हमने 3-4 देखे ना, कम्युनिटी, कोऑपरेटिव एंड ग्रामीण, ये इसका थोड़ा सा बड़ा भाई है। ये क्या है कि जैसे ये छोटे जो कोऑपरेटिव्स है या फिर इनको है, तो बैंक गारंटी मॉडल में क्या होगा कि आप बोरोइंग करते हो कमर्शियल बैंक से, ओके, या फिर आप सेल्फ फॉर्म ग्रुप है या फिर इंडिविजुअल है, वो अगर बैंक के पास जाते हैं तो उनको कोलेटरल आपकी बैंक देंगी। ओके, आपका बैंक जो है वो आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू द बैंक विल टेक अ गारंटी, और आपका या फिर आपका कुछ सेविंग होगा तो उसके बिहाफ पे वो गारंटी देगी। तो मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में बोला था, यू वर सेल्फ, वी आर योर पर्सनल सीओ, करेक्ट। तो ये एक आप जाके जरा प्लीज ढूंढिए। देन क्रेडिट यूनियन मॉडल, क्रेडिट यूनियन मॉडल हमने जो अभी तक का देखा इनसे ये अलग मॉडल है। इसमें सिर्फ ये क्रेडिट देंगे, ओके, ये इसमें ये सिर्फ क्रेडिट देंगे, ज्यादा से ज्यादा इनका फोकस किस पे रहेगा, हमें लोन देनी है, ठीक है। बट लोन देते वक्त वो क्या देखेंगे, सामने वाला जो हमारा मेंबर बना है वो मेंबर उसमें सेविंग्स करे तो ही उसको ज्यादा से ज्यादा लोन देगी। और ये क्रेडिट यूनियंस जो है ये नॉन प्रॉफिट फॉर्म्स में चलती है, जैसे कोऑपरेटिव बिजनेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे चलता है, इवन ग्रामीण बैंक सेम इज विद योर कम्युनिटी। बट ये जो क्रेडिट यूनियंस है ये मार्जिनल प्रॉफिट पे चलते हैं, दे आर नॉट रनिंग ऑन मोर प्रॉफिटेबिलिटी, दे आर गिविंग मोर फोकस ऑन व्हाट, कि हम सारे मेंबर हैं, हम मेंबर ही हमारा खुद जितने भी, सपोज टेक एग्जांपल यू एंड मी, we all started, okay, तो you all are also owner, I am also owner, okay, तो मैं आपसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लूंगी ना मुझसे ज्यादा आप इंटरेस्ट लोगे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग मेंबर ड्रिवन। तो ये एक कंसेप्ट है, या यहाँ से वी आर स्टार्टिंग नाउ द न्यू इंटरमीडियरी मॉडल। इंटरमीडियरी मॉडल ये जो है ये सबसे एडवांस लेवल में आया अभी। माइक्रो लेवल में जब आप बात करते हो कि आपको फाइनेंस लेना है या फिर कुछ करना है, तो यहाँ पे इंटरमीडियरी का रोल जो है ये मॉडल क्या करता है, आपको एक थर्ड पार्टी मीन्स लिंकेज का काम करता है, एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में जो लोन देने वाला है और जिसको लोन लेना है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये माइक्रो फाइनेंस का मॉडल करेगा। ओके, तो कई बार क्या होता है कि someone is in need, okay, someone is in need but he don't know, उसको पता ही नहीं कि मुझे लोन कहाँ से मिलेगा, करेक्ट।
तो ऐसे वक्त ये जो इंटरमीडियरी है वो हेल्प करती है आपको उस पर्टिकुलर दूसरे इंस्टीट्यूशन के में कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी जो वर्क कर रही है, दे ऑल आर लोकल कम्युनिटीज, ये सारे के सारे क्या है, लोकल कम्युनिटीज है, और विद द इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर्स। ये लोकल कम्युनिटी लोग होके जो थर्ड पार्टी का रोल करेंगे, और ये जो है ना, इनको पहले ही पता होगा कि सामने वाला जो इंसान है इसका क्रेडिट वर्थनेस कितना है, मीन्स वो आगे जाके उसको पैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, इंटरेस्ट दे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें उसको पता है। और इसीलिए थर्ड पार्टी जो है वो एग्री करता है कि ओके, आई विल मेक यू इन टच विद समवन हु कैन गिव यू द लोन, ओके। तो ये जो ये जो लोकल मनी लेंडर्स है वो कौन कौन हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं, लोकल मनी लेंडर्स हो सकते हैं, या फिर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हो गए, या फिर कमर्शियल बैंक्स हो गए। फॉर द गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम जो है तो उसके थ्रू भी आप ये पर्टिकुलर इंटरमीडियरी मॉडल के थ्रू लोन ले सकते हो, ठीक है। तो ये जब आप इंडिविजुअल बेसिस पे आप करते हो तो ये सारे 3-4 लोग हैं जिनके थ्रू आपको लोन दिया जा सकता है। बट इसके लिए जो इंटरमीडियरी होगा वो लोकल कम्युनिटी वाला होगा, द पर्सन हु नोज और दैट बैंक हु नोज दैट हाउ इज योर क्रेडिट वर्दीनेस, ओके। क्रेडिट गिविंग इंस्टीट्यूशन कुड बी द गवर्नमेंट, ओके। ये आपको जो क्रेडिट देने वाला है, मीन्स लोन देने वाला हो सकता है आपको वो गवर्नमेंट दे रही हो, या फिर कोई कमर्शियल बैंक दे सकते हैं, इवन इंटरनेशनल डोनर्स, बिकॉज नाउ डेज देयर आर द मेनी इंटरनेशनली द फर्म्स आर हियर इन इंडिया, दे आर वर्किंग। तो वो जो है इंटरमीडियरीज क्या करेंगी, वो आपको पैसे में या फिर नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स में हेल्प करेगी, ओके। गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक या फिर इंटरनेशनल डोनर्स, ये सारे के सारे आपको पैसे की फॉर्म में सिर्फ मदद नहीं कर सकते, वो आपको नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स में भी मदद कर सकते हैं। तो ये मॉडल जो है वो अलग है, हमने अभी तक का जो देखा है वो अलग थे, जितने भी मॉडल देखे, क्रेडिट वाला, देन कोऑपरेटिव वगैरह, करेक्ट। तो ये मॉडल कंप्लीटली अलग है, ये दोनों को कनेक्ट करता है, यहाँ पे सेविंग नहीं हो रही है, समझे। जो पर्टिकुलर इंटरमीडियरी है ना तो वो खुद सेविंग कर रहा है ना तो वो लोन दे रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ कनेक्टिंग का काम कर रहा है। जो कनेक्ट कर रहा है वो थर्ड पार्टी है और उसको सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस पता है, ओके। और जो देने वाला है वो कौन होगा, फिर गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक या फिर इंटरनेशनल डोनर हो गए। और यहाँ पे दिया जाने वाला लोन पैसे के ही अलावा वो किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। ये डिफरेंस है ये सारे मॉडल में से इस मॉडल में, ठीक है। देन इंडिविजुअल बैंकिंग मॉडल, यहाँ पे क्या है कि उनका फोकस इंडिविजुअल पर्सन पे है, ओके। उनका कहना है कि इंडिविजुअल बैंकिंग मॉडल जो है वो ग्रुप पे फोकस नहीं करता है, वो इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करता है। आप कोऑपरेटिव ले लो, कम्युनिटी ले लो, क्रेडिट ले लो, ग्रामीण ले लो, ये सब के सब फोकस किस पे कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर हैविंग द सेम इंटेंशन और हु आर लुकिंग फॉर अ लोन। बट ये जो बैंक है ये इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर फोकस करता है, इंडिविजुअल नीड क्या है आपकी, आपको क्या चाहिए। जैसे आपको अगर आपका खुद का कार लेना है, या फिर नॉट कार बेसिकली, बट जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में मैंने देखा है कि मैंने एक पर्टिकुलर स्मॉल प्राइवेट यूनिट है जो पूना में ही है, हड़पसर में, वहाँ पे मैंने विजिट किया था। That lady is recycling the plastic into the chattais and into the what I need to say, कपड़े में वो कन्वर्ट करती है वो प्लास्टिक को। तो वो जो प्लास्टिक जो भी पॉलीथीन्स है ना वो अलग अलग करती है लेडीज, उसका मैडम का खुद का ये है फर्म है। तो वो जो अलग अलग रैपर, इवन हमारे जो बिस्किट्स के रैपर है, चॉकलेट्स के रैपर, ये अलग अलग किए जाते हैं। कैडबरी ही तो यू विल नॉट बिलीव सारे कैडबरी के रैपर है, अगर मारी का बिस्किट है तो मारी के सारे ही रैपर है। उसको स्ट्रिप आउट किया जाता है और वो स्टिप आउट किया हुआ जो रॉ मटेरियल है वो गांव में दिया जाता है, नियर बाय पुणे में जितने भी छोटे छोटे गांव है। और वहां पे जो लेडीज है, आपने सुना होगा हाथ मार्क, मीन्स जिसके लिए हाथ का चलने वाला मशीन होता है ना, जिसके ऊपर टेक्सटाइल बनता है, जैसे साड़ियां पहले बनती थी, वो हाथ मार्क पे वो जो प्लास्टिक के जो बने हुए थ्रेड्स है वो थ्रेड उस पर चढ़ाए जाते हैं। थ्रेड बनाने के लिए चरखा भी है और उसके ऊपर चढ़ा के वो ना, बिलीव इतना सुंदर कपड़ा बनता है, कोई कहेगा ही नहीं ये प्लास्टिक से बना है। तो जैसे कि अब ये लेडीज है, मैं ये क्यों एग्जांपल बता रही हूँ, जो लेडी उसके अंदर काम कर रही है अगर उसके पास वो चरखा नहीं है,
वो खुद का वो जो हैंड मार्क का जो वर्किंग मशीन है वो नहीं है, वो बाय करना चाहती है, तो शी इज इंडिविजुअल नीडी पर्सन, करेक्ट, क्योंकि वो कमाना चाहती है, जो भी वो बनाएंगे वो उसी कंपनी को दैट लेडी शी इज सपोज टू बाय, करेक्ट। तो ये जो ऐसी नीड है दैट लेडी इज हैविंग इंडिविजुअल नीड, करेक्ट। तो ये जो इंडिविजुअल बैंकिंग मॉडल उस लेडी के लिए बना है, ओके। वो लेडी का कितना वर्दीनेस है, वो कितना उसका पैसा है, कितना इनकम वो कमा रही है, और वो किस चीज के लिए लेना चाहती है लोन, ये देख के ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैंक है वो लोन देती है, ओके। और ये दिस मॉडल सूट्स फॉर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मैंने इसी बोला, मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिया ना प्लास्टिक वाला वुमेन्स का, वो स्पेसिफिकली इसीलिए दिया, क्योंकि इंडिविजुअल बैंकिंग में दे आर फोकसिंग ऑन फॉर व्हाट पर्पस यू आर टेकिंग, ओके। बेसिकली एज आई टोल्ड यू, इनका इनकम ही कम है, तो इनका हम क्या देखेंगे, ना तो आप उनका बैंक बैलेंस देख सकते हैं, ना तो फॉर्म 16 देख सकते हैं, ना तो उनका इनकम टैक्स कुछ मांग सकते हो, क्योंकि उनकी तो उतनी उनकी इनकम है ही नहीं भाई। तो यहाँ पे क्या देखा जा सकता है, आप ये देखो कि वो किस स्किल का यूज करने वाले हैं, और वो पर्टिकुलर किस चीज के लिए वो पैसा लगाने वाले हैं, कि ताकि ये पैसा रिटर्न कर पाएगी, ओके। तो दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल बैंकिंग इज गिविंग फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, कि उस लेडी का कैसे स्किल डेवलप होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर वो किस तरह से वो रिटर्न करेगी, ठीक है। तो इसमें इसके लिए इंडिविजुअल बैंकिंग में कोऑपरेटिव बैंक्स भी है जो वो इस तरह की सर्विसेज देती है, कमर्शियल बैंक्स भी है, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs भी है, रीजनल रूरल बैंक्स, ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है कोऑपरेटिव के पैरेलल चलने वाला। तो ये भी आपको यहाँ से भी लोन मिल सकता है। इसमें दोनों तरह के लोन मिलते हैं, फार्मिंग लोन भी मिल सकते हैं, नॉन फार्मिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके लिए भी लोन दिया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर वेबसाइट दिया हुआ है कि सेवा नाम का एक बहुत बड़ा ऐसा ही एक वुमन एम्पावर्ड बैंक है, बांद्रा अहमदाबाद में। प्लीज डू विजिट, completely run by the women, and you will believe they are not only empowering the women but they are making them skillful। उनके स्किल के लिए वो कंडक्ट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। मैं यहाँ विजिट कर चुकी हूँ, क्योंकि एवरी ईयर हम अमूल में विजिट करते, तो वी यूज टू विजिट हियर। तो यहाँ पे उनके अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको यहाँ पे जब आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। आपको अगर ट्रेनिंग के लिए जो भी सामग्री लगने वाली है उसके अंदर चलने के लिए, वो भी वो देंगे। तो इसके अलावा वो आपको आपके यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर नॉलेज देते हैं। स्पेसिफिकली लेडीज के लिए ये पर्टिकुलर सेवा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये देखा गया है कि लेडीज जो है ना वो नेचर की बहुत केयर करती है। उनका कहना यही है, मैं जिस ट्रेनर को मिली थी उसने वही कहा था कि ladies are more sensitive for the environment, so we are here providing the training to the women, they how they can keep the soil texture normal, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं वो आजकल की एग्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, हमारा जो फूड इनटेक है उसमें उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी वो रखने के लिए, फिर काउज को कैसे रखना है, उनका काउ डंग कहाँ पे उनको डंप करके कैसे गैस मिल सकता है, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है पैरेलल टू देयर स्किल डेवलपमेंट। सिलाई कढ़ाई ये भी सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्लीज डू विजिट ऑन दिस वेबसाइट। देन एनजीओ, ये एक और एक मॉडल है जो आजकल बहुत सारे लोग एनजीओ खोल के उसके अंदर पैसा कलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू मदद करते हैं। तो ये जो एनजीओ मॉडल है ये भी हमारा आता है माइक्रो फाइनेंस में। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो बेसिकली इंटरमीडियरी का काम करती है। इसके लिए मल्टी डायमेंशनल वर्क होते हैं एनजीओ में। जैसे आपने कई बार देखा होगा एनजीओ एजुकेशन से रिलेटेड है, एनजीओ हेल्थ रिलेटेड है, एनजीओ रिलेटेड टू पुअर पीपल हेल्पिंग हैंड है। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं, हर एनजीओ का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली जब वो रजिस्टर होता है ना तो दे यूज टू राइट कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, विजन है, ओके। तो ये एनजीओ का बेसिकली ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि उन्होंने ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, उनके अंदर वर्कशॉप लेने चाहिए कि जिसके थ्रू लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रिवेन्यू जनरेट करने की, और उसके अंदर वो माइक्रो फाइनेंसिंग भी देते हैं, ओके। एनजीओज आर सपोर्टेड टू बोरो ग्रुप जिनको लोन की जरूरत है,
उनके लिए भी एज वेल एज दे आर सपोर्टेड टू प्रमोटर ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो लोन देने वाले हैं उनके लिए भी ये प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दे आर वर्किंग एज ए इंटरमीडियरी। एनजीओ कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करता है, ना तो वो किसी से पैसे लेता है, ना तो किसी को लोन देता है, ये सिर्फ कनेक्ट करता है, लाइक अवर प्रीवियस वन इंटरमीडियरी वाला, ये इंटरमीडियरी मॉडल। ओके, तो एनजीओ क्या है, एक इंटरमीडियरी है, लाइक इंटरमीडियरी मॉडल सिर्फ। ओके, बट एनजीओ का मेन क्या है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करे, वर्कशॉप्स ले, जिसके अंदर वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज बताए और माइक्रो फाइनेंस कहाँ से मिलेगा उसको लाके दे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो हेल्प कर रहे हैं छोटे बड़े इंस्टीट्यूशंस को माइक्रो फाइनेंस पहुंचाने के लिए, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके लिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है माइत्रा का, जो कर्नाटका का है। उसके अंदर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये बहुत सक्सेसफुल है, यहाँ मुझे विजिट करना है बट आई एम नॉट येट एबल टू विजिट। ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे सोशल प्रोग्राम्स कंडक्ट करे कि जिसके अंदर वो कई सारे लोगों को इन्वॉल्व करे, लोकल एरियाज के। कर्नाटका में उनका वही काम है कि जो सोशल प्रोग्राम्स है उसमें उनको इन्वॉल्व करके उनको लाइवलीहुड मैनेजमेंट पता है। लाइवलीहुड मीन्स व्हाट, आपका डे टू डे का जो खर्चा पानी वो कैसे कमाया जा सकता है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्या करना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी उनको बताई जाती हैं। इसमें और एक, जैसे कि मैंने सेवा के बारे में बोला था, सेम हियर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट भी वो सिखाते हैं उन लोगों को कि किस तरह से आप नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्टोर कर सकते हो, फिर ट्रेनिंग्स दिए जा सकते हैं। यहाँ पे ये लोग बाम्बू का जो कल्टीवेशन है वो कैसे करना है, बीज को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं हमारे फार्म में, ये भी सारी चीजें ये कंडक्ट करवाते हैं। जैसे इंडिया का बाम्बू मिशन है और भी एक मिशन है जो 2024 में दे आर एक्सपेक्टिंग दे विल बी रीचिंग टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो एनजीओ भी एक वन ऑफ वेज है कि ये बाम्बू मिशन, बी मिशन जो है वो पूरे इंडिया में फैलाया जाए, क्योंकि एक छोटा सा मिशन नहीं, ये बहुत बड़ा मिशन जिसके थ्रू बहुत कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें बनाई भी जा सकती है। तो ये एक एनजीओ का है। देन ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन। ये वर्ल्ड में पूरे इसी नाम से जाना जाता है, बट इंडिया में चिट फंड्स नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, रोटेटिंग सेविंग क्रेडिट एसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग सेव करते हैं, ओके, जो लोग सेव करेंगे वो लोग साइमल्टेनियसली बोरो भी कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप सेविंग भी करोगे और उसी में से आपको लोन भी दिया जा सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर सेविंग्स कौन कर सकता है, जो मेंबर है, ग्रुप ऑफ मेंबर में जो लोग साथ में आके उसके फंड उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर पैसे डाल रहे हैं, वो रेगुलर बेसिस पे उसके अंदर कॉमन पैसे रखते जाएंगे। जैसे 2000 रुपीज ईच पर्सन सपोज टू सेव एवरी मंथ। ओके, तो हर महीने 2-2 हजार रुपए हर इंसान उसके अंदर डालेगा। जैसे टेक एग्जांपल, हाउ मेनी आर विथ मी, लेट मी चेक। ओके, अराउंड काउंट इज 15। ओके, तो ये ऑल 15 पीपल, हमने चिट फंड खोला, उसका रेट डिसाइड हो गया कि हम अगर किसी को लोन लेना है तो 11% लगेगा। ठीक है, बट इसमें दूसरा एक रूल है कि हर एक ने हर महीने में 2000 डालना है। अंडरस्टूड? तो हम 15 लोगों में से जब कभी भी किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इसी फंड में से मुझे लोन दिया जाएगा। और मैंने लोन लिया, सपोज मैंने 15,000, मैंने सपोज 20,000 का लोन लिया। ठीक है, तो 20,000 के ऊपर 12% के हिसाब से मैं डालूंगी इसके अंदर। फिर से रोटेशन में, रोटेशन के तो पैसे चलते ही रहेंगे, बट ये मेरा लोन भी मुझे मिलेगा। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, रोटेशनल सेविंग क्रेडिट एसोसिएशन। इसी को इंडिया में चिट फंड कहा जाता है। ओके, तो ये रेगुलर साइकिलिंग बेसिस है, मींस एवरी मंथ यू हैव टू पे, क्वार्टरली यू हैव टू पे और ईयरली यू हैव टू पे। बट ये साइकिल जो है वो एवरी मेंबर को कंपलसरी है। ओके, और ये जो पर्टिकुलर ये जो चिट फंड है, ये क्यों आए, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक इंसान का बैंक के साथ कनेक्ट है, ऐसा तो नहीं है, करेक्ट? तो इसीलिए ये चिट फंड आया। जैसे कि यू माइट बी नोइंग, बीसी करके एक होता है ना, बीसी लगती है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोइंग अबाउट इट, स्पेसिफिकली लेडीज आर नोइंग अबाउट इट, कि बीसी का एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सारी अपार्टमेंट की लेडीज पैसे जमा करती है उसके अंदर,
और वो लेंट आउट, एक किसी की चिट निकलेंगी ना, उसको वो सारे पैसे दिए जाते हैं, फिर जब आपका टर्न आएगा तब आपको मिलते हैं। यहाँ पे वैसे चीज नहीं है, यहाँ पे क्या है, आप लोन लोगे बाकायदा आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। तो ये रोटेशनल चीज ये है यहाँ पे। और इसमें फायदा क्या है चिट का, ये चिट फंड्स का, कि इट्स वेरी इजी एंड फ्लेक्सिबल है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है नहीं, और इसीलिए इसमें फ्रॉड्स बहुत हुए हैं, हम आगे देखेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि श्रद्धा चिट फंड का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चिट फंड हुआ। देन विलेज बेस्ड मॉडल, ये सब मॉडल से एडवांस लेवल का मॉडल है। ये मॉडल जो है ना, ये हमारा पहले जैसे कम्युनिटी का बोला था, वैसे ही ये विलेज लेवल पे बनने वाला बहुत बड़ा मॉडल है। ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट ऑफ इनकम पीपल को टारगेट नहीं करता, ये पूरे विलेज को टारगेट करता है। और यहाँ पे जो लोग आएंगे वो एक पर्टिकुलर एक विलेज के ही रहेंगे, और वो सारे लोग मिलके ये पर्टिकुलर क्रेडिट मॉडल बनाएंगे कम्युनिटी बेस का। ओके, एक ही विलेज के लोग, कम्युनिटी नहीं है यहाँ पे, बेस है विलेज का, जहाँ पे 25 to 50 to 100 पीपल टुगेदर आएंगे, और जो वो क्या करेंगे, उसके अंदर सेविंग्स करेंगे और उसी में से लोन दिए जाएंगे। ओके, और ये क्यों किए जाएंगी, टू एनहांस देयर इनकम थ्रू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। मींस ये क्यों करना चाहते हैं, बेसिकली विलेज बेस्ड मॉडल जो है, इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों का इनकम बढ़ाना, लोगों के लिए खुद कुछ तो कारोबार स्टार्ट करना, जिसकी वजह से वो सेल्फ सस्टेन हो जाए, उनको कोई किसी और काम पे डिपेंड रहना ना पड़े। तो इसमें क्या है, दे गेट देयर फर्स्ट लोन थ्रू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जिसके थ्रू उन्होंने हेल्पिंग हैंड लिया, उनके थ्रू उनको वो लोन मिलेगा, विच हेल्प्स देम फॉर्म द कम्युनिटी क्रेडिट एंटरप्राइज। क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो इनके पास स्टार्टिंग का फंड कहाँ से आएगा, तो ये फंड देने वाली एजेंसीज है, गवर्नमेंट होता है जनरली, या फिर नाबार्ड होता है, वो आपको फंड देंगे और आप ये स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चूज द मेंबर, इलेक्ट देयर ऑफिशियल बैरियर, वो क्या करेंगे, उन्हीं के मेंबर्स में से कोई एक को अथॉरिटी देंगे, जो उनके खुद के लॉ बनाएंगे, जो लोन सैंक्शन करेगा, एज वेल एज कलेक्टिंग ऑफ सेविंग्स करेगा। ओके, मीन्स ऑफिस का जो पर्सन बेयरर करके जो पर्सन इलेक्ट होगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, जैसे हम 15 लोग हैं, सपोज हम 30 लोग हो गए सपोज, तो क्या करेंगे हम लोग, किसी न किसी गवर्नमेंट या फिर नाबार्ड के थ्रू हमें इसके लिए फंडिंग मिल जाएगा, फिर हम में से ही किसी को इलेक्ट किया जाएगा जो ऑफिस से, और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि खुद के बायलॉज बनाए। बायलॉज मीन्स व्हाट, ये वर्किंग कैसे करेगा, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कौन कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, ये सारी चीजें ये ऑफिस बेयरर बनाएगा, और वो उसको फॉलो भी करवाएगा। लोन देना, कलेक्ट करना, पेमेंट लेना, ये सारी चीजें वो बंदा देखेगा। The only collateral they work with is the trust। यहाँ पे सिर्फ किस पे काम कर रहे हैं, वो ट्रस्ट के बेसिस पे ही काम होता है। यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस ये चीज नहीं देखी जाती है, ये ट्रस्ट पे चलने वाला काम है। ओके, कि हम बिलीव करते हैं कि सामने वाला ट्रस्ट वर्दी है, हम फिजिकली या फिर किसी एक्टिविटी से या फिर वो किस लिए पैसे ले रहा है, वो क्या करने वाला है, ये सारी चीजें ना देखे हुए सिर्फ ट्रस्ट पे ये काम चलता है। ओके, और इसमें क्या होता है ना, एक पर्सन, इफ जैसे कि मैंने बोला आप और मैं 30 लोग हैं, तो क्या होगा, मैं आपके लिए विश्वास में, अगर आप में से किसी को लोन चाहिए, तो मैं आपके लिए एक इंडिविजुअल के लिए आई एम रेडी टू बिकम अ कोलैटरल। ओके, अगर मुझे लोन लेना है तो पूरा आपका लोगों का ग्रुप मेरे लिए कोलैटरल का काम करेगा। ये मॉडल है विलेज मॉडल, ऐसा किसी और मॉडल में नहीं है। ये सिर्फ इस मॉडल में है कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल के लिए पूरा ग्रुप एज अ कोलैटरल खड़ा होगा जब कभी भी वो लोन लेगा। ओके, देन द वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट इज स्मॉल बिजनेस मॉडल। ये स्मॉल बिजनेस मॉडल है ना, इसमें अभी तक का हमने देखा कि सब इंडिविजुअल 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 की बातें हो रही थी या फिर ग्रुप की बात हो रही थी, बिजनेस की बात नहीं हो रही थी। अभी यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। क्या होता है कि कुछ कुछ छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, बहुत ही छोटे। जैसे कि मैं एक एमबीए के वाइवा में गई थी एक इंस्टीट्यूट में, वहां पे एक मैं लड़के को मिली थी। ही इज मेकिंग अ हैंड पेपर बैग्स, हैंडमेड जो पेपर है उसके वो बैग्स बनाता है, एंड दैट बैग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। उसका फॉर्म, उसका छोटा ही बिजनेस है।
तो ही हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु आर हैंडीकैप। उसने जितने भी लड़के लड़कियां हैंडीकैप हैं नियर बाय पुअर एरियाज में, पिंपरी चिंचवड में मैं वाइवा में गई थी, वहाँ पे एक लड़के को मैंने सुना था। तो उसने हैंडीकैप लोगों को जॉब दिए थे। और इसका मेन जॉब क्या था कि वो हैंडमेड जो पेपर है ना वो खरीद के लाना, और इन जो हैंडीकैप पीपल है, गर्ल्स एंड बॉयज, उनको ये देना। और उनको उसने ट्रेनिंग दिया था कि कैसे वो बैग्स, पर्टिकुलर बैग्स बनाए। तो वो बैग्स जो है वो बनाते थे। और ये जो लड़का है, ये जो बने हुए बैग्स है, यू विल नॉट बिलीव, वो दिखने में इतने सुंदर दिखते हैं ना। ये सारे बैग्स वो जो बड़े बड़े मॉल थे, जैसे हमारा एमेनोरा मॉल है, देन फिनिक्स मॉल है, यहाँ पे जो भी बड़ी शॉप्स में जो आपको बैग्स मिलती है ना, जो अच्छी अच्छी फैंसी, जब आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हो, ये जो बैग्स है, ये बैग्स वो उनको सप्लाई करता था कि आपको अगर 50 बैग्स चाहिए तो ही विल टेक ऑर्डर, ही विल प्रिपेयर एंड ही विल डिलीवर टू यू। तो ये सी अ वेरी स्मॉल आइडिया, ओके, वेरी स्मॉल आइडिया टू मेक अ handbags from the handmade paper, very small idea, correct? तो ऐसे जो small ideas के business है, that boy is having very good family background, उसने इसे business start किया था उस वक्त। तो ऐसे जो छोटे छोटे बिजनेस है जो बहुत ही छोटे हैं और जो इनफॉर्मल वे से काम कर रहे हैं, ये लड़के ने कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी फॉर्म नहीं किया था, ही वाज वर्किंग इनफॉर्मली विद द कॉन्टैक्ट्स, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल, ओके। तो ये एक स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेस है जो स्ट्रगल करता है, जो डायरेक्ट कंपनीज वाले भी तो बनाते हैं ना, कंपनी वाले भी बनाते हैं हैंडबैग, ये भी तो बना रहा था। तो ऐसे जो छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग हैं ना, इनके लिए डायरेक्ट लोन नहीं मिलता, इनके लिए बहुत स्ट्रगल होता है लोन लेने के लिए। बट इनका जो पर्टिकुलर पहुंच है ना, ये स्मॉल बिजनेस मॉडल का, इसका बहुत बड़ा है। ये बहुत सारे पुअर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, इसीलिए मैंने आपको बताया ही इज गिविंग अ जॉब टू हैंडीकैप गर्ल्स एंड बॉयज। तो और उनको ट्रेनिंग भी देना, इसलिए मैंने ये एग्जांपल इसीलिए यहाँ पे आपको रखा आपके सामने कि ऐसे जो लोग हैं इनके लिए लोन मिलना कठिन है। और ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को लगा कि हमें ऐसे स्ट्रेंथन करने चाहिए जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस है, स्मॉल बिजनेस चल रहे हैं, जो इनफॉर्मली चल रहे हैं, और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत है। ऐसे इसके लिए उन्होंने अनेबल से पॉलिसी टू मेक अ इन्वायरमेंट। फिर इसके लिए उन्होंने निकाला माइक्रो क्रेडिट, उसमें क्रिटिकल कंपोनेंट है विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू स्मॉल मीडियम एसएमईज को दिया जाएगा, जिसके अंदर ये लोन उनको मिलेगा एज अ माइक्रो लेवल पे, ओके। बहुत छोटा लोन का जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। उसका इन्वेस्टमेंट हार्डली ही सेड मीन्स एक करीब 100 बैग्स का अगर ऑर्डर मिलता है तो ही नीड हार्डली 10,000 और 15,000, एंड आउट ऑफ दैट ही इज एबल टू अराउंड ऑन समथिंग, ही टोल्ड मी अराउंड 25 to 30,000 में कमा लेता हूँ, सबका दे दुआ के मैंने जो डाला था पैसा उसके ऊपर 6-7 हजार रुपए मिल जाते हैं मैडम। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट द मॉडल, ओके, वेरी स्मॉल, ओके। तो ऐसे जो स्मॉल बिजनेस है इसके लिए भी माइक्रो फाइनेंस में प्रोविजन की गई है। देन और एक मॉडल है जो पैरेलली चल रहा है माइक्रो फाइनेंस में है, वो है मिक्स्ड मॉडल। ये जो मिक्स मॉडल है ये सबको मिला के चल रहा है, मीन्स एनजीओ भी है, एसएचजी भी है, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस भी है, सब कुछ सब लोग यहाँ पे जंप कर रहे हैं, ओके। ये जो पर्टिकुलर मिक्स मॉडल है, ये मिक्स मॉडल क्यों बनाया गया है बेसिकली कि देखा गया कम्युनिटी वाले कम्युनिटी पे फोकस कर रहे हैं, कोऑपरेटिव वाले कोऑपरेटिव पे फोकस कर रहे हैं। और कोऑपरेटिव में आप देखोगे ना, ज्यादा करके जो लोग लीड कर रहे हैं, अगर आप ऑफिशियली देखना चाहोगे तो आप देखोगे कि जिस जो दिखने वाले जो कोऑपरेटिव्स है ना, उसको चलाने वाला कोई पॉलिटिशियन है, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया का बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, या फिर वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बिल्डर है, ओके। यू टेक एनी ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स है। तो वो मॉडल जो है ना, वो किसी पर्सन सेंट्रिक फैमिली सेंट्रिक है। और अगर मैं किसी कोऑपरेटिव मिल्क का भी अगर एग्जांपल लेते तो वैसा ही है, ओके। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक अ मिक्स मॉडल जिसके अंदर सबको एंट्री दिया जाएगा, ओके। तो उन्होंने एनजीओस को भी दे दिया, माइक्रो फाइनेंस वालों को भी दे दिया, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को भी दे दिया, इवन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी आ सकते हैं।
और जो जॉइंट लायबिलिटी मीन्स ग्रामीण बैंक वो मॉडल को भी ले लिया। ठीक है, तो ये क्यों दिया गया बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था ना बीच में मुद्रा लोन दिया जाएगा, करेक्ट, तो इसके लिए ये मुद्रा लोन जो है सबसे ज्यादा एनबीएफसीज और एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस मॉडल के थ्रू ज्यादा दिए गए टू बूस्ट अ स्मॉल लेवल बिजनेसमैन, स्मॉल लेवल बिजनेस हाउसेस। ओके, तो ये मिक्स मॉडल इसलिए बनाया गया है बेसिकली, जो दिखता नहीं बट है जरूर। तो यहाँ पे हमने सारे मॉडल कवर कर लिए। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने सारे मॉडल देखे, तो इसमें एक कनेक्ट है, देखो छोटे लोगों का सेविंग्स होगा और इनकी छोटी रिक्वायरमेंट्स होगी, करेक्ट। तो इसीलिए आपके सिलेबस में एक टर्म है माइक्रो फाइनेंस वर्सेस माइक्रो सेविंग्स वर्सेस माइक्रो क्रेडिट। तो हम वो जो टर्म है ना उसको समझेंगे कि एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस में ये तीनों चीजें चलना क्यों जरूरी है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो सेविंग्स में, क्योंकि जितने भी मॉडल देखे इसमें हमने देखा कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, टू सेव द मनी फर्स्ट। क्योंकि हर बंदा जितना भी कमाता है ही लाइक टू सेव मिनिमम 5% और 10% ऑफ हिज इनकम, एवरी पर्सन। तो ऐसे लोगों के सेविंग जमा करना ये बहुत जरूरी बात है। इसीलिए ये माइक्रो सेविंग्स का कंसेप्ट इस माइक्रो फाइनेंस के साथ चलता है। ओके, यू विल सी ऑल मॉडल, जितने भी मॉडल है हर किसी में सेविंग्स की बात हुई, हर किसी में। बैंक गारंटी में उन्होंने कहा है उसके सेविंग्स। देखो कोऑपरेटिव में भी क्या है कि जितने मेंबर होंगे उनको इक्विटी मिलेगा और उनके लिए क्या होगा, सेविंग्स करना जरूरी होगा। देखो सेविंग्स, इंश्योर द सेविंग्स। सेम इज विथ योर सेविंग कंपोनेंट, मीन्स ऑल कंपोनेंट, जितने भी मैंने कंपोनेंट बोले हैं ये सारे के सारे क्या कहते हैं कि हमें सेविंग्स करना जरूरी है। और जो सेविंग्स हो गए वो स्मॉल हो गए, इसीलिए इसको माइक्रो बोला गया कि माइक्रो सेविंग्स हो गए। और वो जो माइक्रो सेविंग्स रहेंगे वो क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी टू स्टोर फंड फॉर अ पोटेंशियल यूज। मीन्स ये जो लोग छोटे लोग हैं ये किसी न किसी यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा जमा करेंगे और उस पर्टिकुलर के लिए माइक्रो सेविंग अकाउंट जो है वो बनाए जाएंगे। जैसे कि मेरा और आपका सेविंग अकाउंट कहीं ना कहीं है, करेक्ट, वैसे ही ये माइक्रो सेविंग अकाउंट्स भी ये माइक्रो बैंक्स जितनी भी है ना ये ओपन करती है। उनके लिए क्या है, उनका अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है वो ना के बराबर का है। उनके लिए लगने वाली जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी ना के बराबर रखी गई है कि ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करें। ओके, लोन के लिए डिफरेंट स्टोरी है, लोन के लिए डिफरेंट स्टोरी है। बट आपको अगर सेविंग करना है तो ये पक्का है कि आपके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत छोटी रहेगी, आप उसके अंदर सेविंग्स कर सकते हो इजीली। और उसके लिए यू विल नॉट बिलीव, जितने भी स्मॉल बैंकिंग फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस की जितने भी कंपनीज हैं उनमें सबसे ज्यादा मार्केटिंग पीपल सबसे ज्यादा एम्प्लॉय किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके लिए ऑन फील्ड वर्क करने वाले लोग ज्यादा चाहिए, क्योंकि दे वांट टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ विलेज। ओके, तो इसमें ये माइक्रो सेविंग कलेक्ट करने का काम वो बंदे का है जो मार्केटिंग का जॉब कर रहा है। ओके, इसलिए मैंने बोला कि माइक्रो सेविंग में बहुत करियर है। स्टार्टिंग में 3-4 साल स्ट्रगल है, बट आफ्टर दैट यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। तो ये एक है। ओके, देन जब हम माइक्रो सेविंग्स कर रहे हैं तो जो बंदा भी सेव कर रहा है ना उसकी कुछ ना कुछ तो वो बाद में नीड तो आनी है, ही इज इन नीड ऑफ सम क्रेडिट इन फ्यूचर, करेक्ट। तो ये माइक्रो क्रेडिट क्या चीज है, छोटा सा क्रेडिट देना है। तो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटेट टू प्रोवाइड टू द रेडी नीडी पीपल, मीन्स जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए क्रेडिट दिया जाएगा। ये क्या करेगा, हेल्प द पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, इसेंशियली वुमेन्स, स्पेशली दे आर फोकसिंग ऑन वुमेन्स। जैसे कि मैंने बोला सारे मॉडल्स में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है लेडीज पे। व्हेन आई विजिट टू अमूल, सॉरी हाँ, मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैंने अमूल के एक दूध कलेक्शन सेंटर को विजिट किया था एंड आई वाज लुकिंग एट देयर। तो सरप्राइजिंगली हम करीब गए थे 6:30-7 बजे, 6:30 आसपास हम गए थे, क्योंकि वो दूध कलेक्शन का टाइम है उनका। उस वक्त सारी गाय भैंसों का दूध है ना वहाँ पे सेंटर पे आता है।
तो वहां पे करीब करीब 150-200 ऐसे छोटी छोटी कैंस लगी हुई थी, और वो कैन में ना एक टैग लगा हुआ था, नंबर लगे थे और छोटे छोटे नाम लगे हुए थे। तो मैंने देखा कि वो क्या है, वो जो एल्यूमिनियम की लगी हुई चिट क्या है। मैंने सरप्राइज, आई वाज जस्ट क्यूरियोसिटी से मैंने देखा, वो गुजराती में लिखा था, सो आई एम नॉट एबल टू रीड, आई एम एबल टू रीड द नंबर। नंबर से मुझे पता चला था कि नंबर है, बट उसके नीचे क्या लिखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो आई जस्ट टॉक विद वन बॉय, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का था, मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा ये है क्या चीज यार एल्यूमिनियम का, तुम्हें हिंदी समझता है? बोला हाँ समझता है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी भी समझना बहुत बड़ा बात है छोटे छोटे खेड़ों में। मैं उस लड़के को पूछा कि है क्या चीज, तो उसने बताया वो जो टैग है ना उसके साथ उस औरत का नाम लिखा है। तो मैंने बोला कि मैंने 2-4 केटली के नाम पढ़ा उससे, तो मैक्सिमम सारे औरतों के ही नाम थे उस दूध की केटली पे। तो सरप्राइजिंगली फिर मैं जब अंदर वहां पे जो हेड था, मैंने उसको पूछा कि सर व्हेन आई चेक्ड अराउंड 15 to 20 कैंस, तो आई सॉ कि लाइक टैग के साथ लेडीज का ही नाम रखा गया, क्यों है? तो ही टोल्ड मी सरप्राइजिंग फैक्ट कि मैडम अमूल में जितने भी कलेक्शन सेंटर्स है ना, उसमें सबसे ज्यादा 90% लेडीज आर रजिस्टर्ड, जेंट्स बहुत ही कम है। 90% ladies are there who are providing milk to us, and through that we are giving milk to all over the world. I was surprised, मतलब क्यों सर, ऐसा क्यों है? तो he told me then the story कि क्या हुआ क्या नहीं। तो अमूल भी फोकस करता है वुमेन्स पे ही, क्योंकि वुमेन्स आर वेरी ड्यूटेड। ये जो पर्टिकुलर वुमेन्स का है ना, मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली बताया, माइक्रो क्रेडिट ज्यादा बिलीव करता है वुमेन्स पर, क्योंकि उनका ये सोचना है कि वुमेन्स आर देयर हु आर लुकिंग फॉर लाइवलीहुड, क्योंकि औरतों को ज्यादा फोकस रहता है कि मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए सारी चीजें मिले, डेली रिक्वायरमेंट। हम कहते हैं ना 3 चीजें बहुत जरूरी है, कपड़ा, मकान और खाना, करेक्ट? तो ये सारी चीजों के लिए स्पेसिफिकली माइक्रो क्रेडिट जो है स्पेशली वुमेन्स के लिए फोकस करके दिया जाता है। दूसरा एक है कि ये माइक्रो क्रेडिट किस लिए दिया जाएगा कि रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका रहना सहना है उसके लिए दिया जाता है। और एज वेल एज टू फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर उनको कहीं पे रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल, जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा था उनको काऊ खरीदने हैं, बफेलो खरीदने हैं, तो उसके लिए जो मिल्क सेंटर है वो लोन देता है। ओके, और इवन जो अमूल है ना, उनका एक फैसिलिटी है कि आप अगर उस पर्टिकुलर जो जहाँ पे मिल्क कलेक्ट करने वाले हैं ना, उनके लिए सारे डॉक्टर के खर्चे, उनके गाय भैंस का चेकअप फ्री है, उनको सिर्फ मेडिसिन का खर्चा लगता है, और वो मेडिसिन का खर्चा भी डिस्काउंट रेट पे लगता है। Okay, so this is one of the biggest thing they are doing in Gujarat basically, so that's why Gujarat is known for milk. Then the loan, यहाँ पे दूसरा एक है, the loan does not require any asset or collateral। जो माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है इसके अंदर कोई भी asset एज अ मॉर्गेज नहीं ली जाती है। ये सिर्फ आपको आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ना देखे हुए, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है आपके सेविंग से, इसके बेसिस पे आपको दिया जाएगा। तो फिर आगे आता है माइक्रो फाइनेंस। फिर माइक्रो फाइनेंस क्या चीज है? फिर माइक्रो क्रेडिट तो हो गया, माइक्रो सेविंग हो गया, फिर माइक्रो फाइनेंस क्या चीज है? माइक्रो फाइनेंस थोड़ा सा आगे का स्टेप है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप वो लो इनकम लोगों का इनकम बढ़ाने के लिए उनसे इनकम के जो मीन सेविंग्स एक्सेप्ट करना, ये भी एक है। ये जो क्रेडिट वाले हैं ना, ये सेविंग्स नहीं एक्सेप्ट करते। ओके, आई विल सी द डिफरेंसेस आल्सो। ओके, they are looking for increasing the per capita income all over the economy level। ओके, उनका फोकस इस पे है। और माइक्रो फाइनेंस का क्या कहना है, डिलीवर्स द फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पुअर पीपल, जो भी नीडी और बहुत ही पुअर लोग हैं उनके लिए जो लोन की जरूरत है, उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने के लिए माइक्रो फाइनेंस है। who are avoided by the formal financial sector। फाइनेंस फॉर्मल जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे जितने भी बड़े बड़े बैंक्स है, उनसे ये लोग इग्नोर्ड है, ना ही उनका वहां तक पहुंच है, ना ही उनके पास उतने लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है। इसीलिए माइक्रो फाइनेंस उनके पीछे खड़ा रहेगा उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन देने के लिए। ठीक है, नाउ विल सी द बेसिक डिफरेंस क्या है माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस में। जैसे कि मैंने बात किया, माइक्रो फाइनेंस स्मॉल लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू द पीपल हु विद लेस अर्निंग टू मोटिवेट देम टू बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड। सी द वर्ड सेल्फ एम्प्लॉयड।
ओके, उनका फोकस किस पे है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो पूरा गांव का जो गाय और दूध, आपको बीच में लगता होगा मैडम क्यों बता रही है, ये अमूल का एग्जांपल इसीलिए मैंने बताया कि जो औरत का जो ग्रुप है उनको क्रेडिट दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उनके लिए लोन फैसिलिटी दी जाती है, ओके, क्योंकि दैट लेडीज बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, वो जो दूध के पैसे आते हैं उनकी खुद की कमाई है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड, शी बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। माइक्रो फाइनेंस का जो है ये इसका फोकस ही अलग है, रेफर्स टू नंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज है जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइजेस हु कैन नॉट टेक अ शेल्टर ऑफ अ बैंक, में जिनको बैंक सर्विस नहीं दे पा रहा उनके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। माइक्रो क्रेडिट क्या करता है, ये टू स्मॉल लोन प्रोवाइडर है एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एज वेल एज टू द पर्सन बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए हेल्प करता है, टू हेल्प द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर ओन स्मॉल बिजनेस, उसके लिए भी माइक्रो क्रेडिट काम करता है। बट माइक्रो फाइनेंस जो है इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये क्या करता है, लोन्स देता है, इंश्योरेंस है, सेविंग्स देता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड पर्टिकुलर दिस सर्विसेज टू लो इनकम, इनका जो स्पेक्ट्रम है कि बहुत बड़ा है, मीन्स ये सिर्फ माइक्रो लोगों को, मीन्स जो लोअर पीपल है उनके लिए फोकस नहीं करता, ये उससे ज्यादा जो इनकम अर्निंग पीपल है उनको भी टारगेट करता है माइक्रो फाइनेंस, बट माइक्रो क्रेडिट नहीं टारगेट करता। माइक्रो क्रेडिट स्पेसिफिकली बहुत पुअर लोगों के लिए जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या फिर नियर टू पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए ये पर्टिकुलर फैसिलिटी है। और माइक्रो क्रेडिट इंक्लूड्स क्रेडिट एक्टिविटी, इसमें सेविंग नाम की चीज है नहीं, ओके, बट माइक्रो फाइनेंस इंक्लूड बोथ, माइक्रो फाइनेंस इंक्लूड बोथ क्रेडिट एक्टिविटी एंड नॉन क्रेडिट एक्टिविटी, मीन सेविंग्स, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इसके अंदर माइक्रो फाइनेंस में इंक्लूड थी। माइक्रो क्रेडिट में सेविंग्स नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। देन दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो माइक्रो फाइनेंस स्मॉल साइज में लोन देता है, शॉर्ट टर्म रीपेमेंट पीरियड होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, आपने लोन दिया तो आपको 6 महीने, 3 महीने, 1 साल में पूरा देना होता है। ये इनका मीन्स इसी टाइप के लोन दिए जाते हैं, ज्यादा बड़े लंबे लोन नहीं दिए जाते हैं। और जो भी लोन दिए जाएंगे वो स्मॉल एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज के लिए होंगे, डायरेक्ट टू लोकल नीड, मीन्स जो लोकल नीड आपकी है उसके बेसिस पे दिए जाते हैं। वही चीज माइक्रो फाइनेंस जो है वो भी लो इनकम को देता है, बट किस लिए देता है, इंडिविजुअल को भी देता है, स्टार्टअप करना है आपको, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए भी देता है, या फिर इंक्रीज द असेट, आपको कुछ नया असेट खरीदना है, या फिर आपकी रिस्क कम करनी है, या फिर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, या फिर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, इंक्रीज द इनकम्स टू इम्प्रूव द एक्सेस टू द एजुकेशन, मीन्स आपको एजुकेशन लोन की जरूरत है, या फिर आपको इवेंचुअली इंक्रीज द वेलफेयर, मीन्स आपकी जो एक्टिविटीज है बिजनेस के या फिर पर्सनल लाइफ की वो बढ़ानी है, तो उस सब चीजों के लिए माइक्रो फाइनेंस है। बट माइक्रो क्रेडिट इन सब के लिए नहीं है, वो स्पेसिफिकली है, शॉर्ट पीरियड है, और वो क्या है, आपकी लोकल जो नीड्स है डायरेक्ट उनको फाइनेंस करने के लिए माइक्रो क्रेडिट है। माइक्रो फाइनेंस किसके लिए, इसके अलावा जो आपकी लोकल नीड्स और आपकी लोकल स्मॉल एक्टिविटीज है उसके अलावा आपको अगर किसी भी चीज के लिए लोन चाहिए तो आप माइक्रो फाइनेंस के पास चले जाओ। और जो माइक्रो सेविंग्स का जो कंसेप्ट है वो माइक्रो फाइनेंस में आता है, माइक्रो क्रेडिट में नहीं आता है, अंडरस्टूड। इसीलिए ये 3M आपके सिलेबस में वर्सेस दिखाए गए हैं, ओके। So I hope everybody clear with this particular concept. Any questions so far? Any questions so far? You please unmute and tell me. कोई question है? You can write in chat box also. Let me check. I can check. Oh, sorry, मैं check नहीं कर पाऊँगी. Ma'am, in small finance, can we give the example of say Bandhan Bank also? It's like earlier it started with the chit fund and now it's a commercial bank. Yeah. They started with a very small and now they become a bank.
ऐसे बहुत सारे उज्जैन उज्जीवन बैंक, वो भी अभी धीरे धीरे उसी में से चल रहे हैं, दैट इज एन अगेन अ स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस। ओके। तो जनरली आप देखोगे ना, जितने भी जो बैंक नए नए जो आए हैं ना, ये सारे के सारे एज अ माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट हुए, देन उनका धीरे धीरे उन्होंने कन्वर्ट करते करते वो, इसलिए मैंने आप लोगों के एक एक मॉडल एडवांस बताते गई, करेक्ट। वो जैसे जैसे बढ़ते गए, तो क्योंकि आपको बैंक रजिस्टर करने के लिए आपका उतना कैपिटल होना जरूरी है, एसेट टर्नओवर रेशियो और ये सारे रेशियो मेंटेन होना जरूरी है, तभी आप आरबीआई के साथ रजिस्टर होते हो। जैसे आपने बंधन बैंक का एग्जाम्पल दिया, बंधन बैंक जो है वो जब स्टार्ट हुई थी, तो इट इज वेरी स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनी, एंड विद दिस पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जैसे मतलब सेविंग्स, इनका जो है पहुंच बहुत छोटे छोटे लोगों के पास तक पहुंचता है, तो इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा होता है, और कस्टमर बेस होने की वजह से उनके पास सेविंग ज्यादा आ गए, और जैसे जैसे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, माइक्रो फाइनेंस में आपको लोन के साथ इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, करेक्ट। और माइक्रो फाइनेंस का अगर आप अच्छे से अगर देखोगे, उनके लोन के रेट जो है ना वो हाई है एज कम्पेयर टू नेशनल, क्योंकि इनका ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, ये यस। एक दूसरा ड्रॉबैक है। तो जैसे जैसे इनका जो डेवलपमेंट माइक्रो फाइनेंस से, वो जैसे जैसे उनको इनकम ज्यादा मिला, तो दे वांटेड टू बिकम अ बैंक। बट ये ऐसा नहीं कि बंधन बैंक कभी माइक्रो फाइनेंस नहीं करता, ऐसा नहीं, उनका एक डिवीजन है जो माइक्रो फाइनेंस देखता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस यस मैम, यस। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, then shall I proceed? Let me take a glass of water. Okay. अभी हमने जितने भी सारे दुनिया भर के माइक्रो फाइनेंस में देखे, उसमें एक बहुत बड़ा मॉडल है जो इनफॉर्मली सारे विलेजेस में आज की डेट में इंडिया में चलता है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, 99% फोकस्ड एंड कलेक्टेड बाय द लेडीज। बहुत ही कम ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो मेन के हैं। मैंने एक कहीं तो देखा था, व्हेन आई विजिटेड टू भीमथड़ी जत्रा, आई होप सबने कभी ना कभी विजिट किया होगा। भीमथड़ी जत्रा जो पूना में भरता है ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए बना, एक्चुअली खड़ा किया जाता है। वहां पे जितने भी लोग आते हैं, जितनी भी लेडीज पार्टिसिपेट कर रही है, वो ज्यादा करके सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लोकल वेंडर्स, लोकल बिजनेसमैन भी वहां पे होते हैं, क्योंकि वो फाइनली कमर्शियल इवेंट है। बट जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर इवेंट का, इट इज टू बूस्ट द सेल्फ हेल्प ग्रुप अराउंड महाराष्ट्र। ओके, जितने भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको सबको वो इन्वाइट करते हैं। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, ये बहुत पुराने हैं। जैसे कि हमने कोऑपरेटिव्स देखे, वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप पुराने हैं। और इसमें मैंने लेडीज ज्यादा क्यों बोला, क्योंकि लेडीज जो है ना, जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, दे ऑलवेज लाइक टू कम एंड वर्क टुगेदर। ओके, तो ये जो पावर है वही एक्चुअली ड्राइव करता है इस पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेफिनेशन नाबार्ड के थ्रू जो भी है वो मैं पढ़ती हूँ। Small economical homogeneous affinities group and the rural poor voluntarily formed to save and mutually contribute to a common fund to be lent to its member as per the group member decision. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मीनिंग इन्होंने ये बताया कि एक छोटा सा ऐसा ग्रुप जो इकोनॉमिकली सेम है और एक ही पुअर क्लास को बिलोंग करते हैं, वो साथ में वॉलंटरीली आते हैं, साथ में वॉलंटरी सेविंग करते हैं, और उनका म्यूचुअली जो है ना, वो कुछ ना कुछ फंड में जमा करते हैं, वो किसी और को मदद भी करते हैं ग्रुप के अंदर ही। और वो जो ग्रुप में हेल्प करनी है ना, वो भी ग्रुप का डिसीजन रहेगा, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, ग्रुप का डिसीजन रहेगा लोन देना कि नहीं देना, ऐसा नाबार्ड का कहना है। बट प्रैक्टिकली जो मैंने देखा वो ये है, सारी वुमेन्स जितने भी मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप देखा है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या करते हैं, जितनी भी लेडीज है ना, ये कॉमन आके सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर करती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया जाएगा। वो प्रोडक्शन करने के लिए जो कैपिटल है, वो कैपिटल ये सारे लेडीज मिलके कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, और बिजनेस स्टार्ट करेगी, कुछ ना कुछ बनाने का वो स्टार्ट करेगी। जैसे कि मैंने बीच में एक भीमथड़ी जत्रा में मैंने एक देखा था,
दैट लेडी मीन्स दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप इज मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अचार, जितने भी पिकल्स है वो अलग अलग पिकल्स बनाती है, चटनियाँ बनाती है, इवन द मसालेज वो बनाती है, और वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू बेचती हैं। तो आई वन बिग क्वेश्चन कि ऐसे तो बनाने वाले कई सारे हैं, आप सेल कैसे करते हो? तो लेडीज का ना ग्रुप बहुत बड़ा होता है और दे आर अ गुड मार्केटिंग पीपल बेसिकली। तो ये जो लेडीज है ना वो खुद का मार्केटिंग खुद करती है। ओके, वो खुद का हेल्प करती है। अभी मुझे एक गांव का नाम नहीं याद आ रहा, हमारी एक मैडम गई थी, शी टोल्ड मी दैट विलेज कि आप मैडम विजिट करो, उसमें ना दैट विलेज कंप्राइज ऑफ 100 एंड समथिंग 30 और 40 सेल्फ हेल्प ग्रुप। पूरा गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सारी लेडीज कुछ ना कुछ बना रही, सॉफ्ट टॉय, चटनियां बनाना, झाड़ू बनाना, मेनी थिंग्स एंड उनका खुद का मार्केटिंग का ये है, मुझे नाम नहीं रिकलेक्ट हो रहा, मैं आपको कल बताती हूँ। आप अगर कहीं जाओ ना पुणे के पास आजू बाजू, प्लीज उस गांव में विजिट करना, सारे प्रोडक्ट लेडीज ने बनाया, खुद के गांव में वो बेचती है, गांव के बाहर भी बेचती है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वुमेन्स घर बैठे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ बहुत कुछ कर सकती है, और आज की डेट में वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बड़ा है। ओके, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसेप्ट आया, ये कब आया? बेसिकली ये स्टार्टेड विद 225 ग्रुप इन 1992 में जब स्टार्ट हुआ था, तो ये 225 लोगों के साथ शुरू हुआ था, ग्रुप के साथ। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1992 में फर्स्ट टाइम। आज की डेट में, ये 2019 का डेटा है, मुझे नहीं पता 2021 में कितना बदला। ओके, तो ये मैंने नेट से ही लिया, मैंने कुछ भी कहीं से भी नहीं खुद बनाया, जो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, ये मेरे खुद के मेरे एक्सपीरियंस बेस है। तो ये जो पर्टिकुलर आज की डेट में जो एसएचजी है वो अराउंड 16,18,456 एसएचजीज ऑल ओवर द इंडिया फिलहाल वर्किंग है। और इन एसएचजी के लिए ना बहुत बड़ा एक डोर ओपन है, वो है उनके लिए बैंक लोन मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल है, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ना कोई लिमिट नहीं है। ओके, यू हैव टू स्टार्टिंग इन द रजिस्टरिंग। आप अगर आई डोंट नो आप लोग ने कभी एसएचजी को विजिट किया है नहीं, बट एसएचजी रजिस्टर करने के लिए सिर्फ 6 लोगों की जरूरत होती है। अगर आप ऑन पेपर अगर रजिस्टर हो तो ही लोन मिलता है, क्योंकि तो minimum 6 ladies 6 gents supposed to come and they can form this SHG। फिर उनके हिसाब से जितने लोग साथ में जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है, जो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन करते जा सकते हैं। और इसमें ये सबसे बड़ा इनके लिए बैक डोर मीन्स बहुत बड़ी एंट्री है उनके लिए। उनको अगर एक्सपैंड करना है तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस तो है ही, बट इनके लिए जो SBI, ICICI, इवन द कारपोरेट आगे है मेरे स्लाइड में, बहुत बड़े बड़े कारपोरेट भी अब एसएचजी को प्रमोट करते हैं। तो अराउंड इंडिया 25 millions members of SHGs are women in India basically। इसलिए मैंने आप लोगों को एक गांव का नाम मैं कल बताती हूँ, फिर से आई विल टॉक विद मैडम, उन मैं आपको पक्का बताऊंगी। प्लीज डू विजिट दैट विलेज, आई ऑल्सो वांटेड टू विजिट दैट विलेज। तो वो जो पर्टिकुलर, इसलिए मैंने बोला कि वुमेन एम्पावर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। तो इसका बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों साथ में आते हैं लोग बेसिकली? तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, और एक इनकम जनरेटिंग कोई भी एक्टिविटी उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर चलाई जाती है। इससे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, चटनी बनती। हाँ, एक भीमथड़ी जत्रा में मैंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप देखा, दे आर मैन्युफैक्चरिंग दैट, आई डोंट नो आप लोग कितने लोग जानते हो, गोदडी पता है? मराठी में झावर पण म्हणतात त्याला, किंवा गोदड़ी जो बनती है, जो पुराने कपड़ों से बनती है, वो बनाने का काम वो करती है। क्योंकि आई मीन्स उस पर्टिकुलर लेडी को मैंने पूछा था कि आपको क्यों लगा कि गोदड़ी बनानी चाहिए बेसिकली, व्हाट इज अ नीड, मीन्स आपको क्यों लगा? एंड यू विल नॉट बिलीव, बहुत अट्रैक्टिव कलर, बहुत ही अट्रैक्टिव पैटर्न से बनाई थी वो। तो मैंने उनको ये बोला कि आपको कैसे लगा कि आप नहीं बनाना चाहिए? तो शी सेड कि मैडम हुआ क्या है ना, अर्बन में सिटी एरियाज में लोगों को इतना सब कुछ बनाने का टाइम है नहीं,
बट दे लाइक टू हैव अ रूलर लाइफ, मीन्स रूलर का टच होना चाहिए ऐसा लगता है लोगों को घर में। तो उस गोदड़ी के पैटर्न में, यू नॉट बिलीव, उनके पास हैंड वॉल हैंगिंग भी बने हुए थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो कोई कहेगा भी नहीं कि पुराने कपड़ों के पैटर्न से बने होंगे, बहुत ही सुंदर। तो मीन्स ये एक ऐसी कहते हैं ना इनोवेटिव आइडियाज, मीन्स उन औरतों ने ये दिमाग लगाया कि दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ गोदड़ी का भी बिजनेस हो सकता है, उसको वॉल हैंगिंग भी बन सकता है। तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी दे हैव डिड एंड दे हैव एम्प्लॉयड देमसेल्फ। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएचजी बेसिकली। दूसरा एक है कि ये एसएचजी क्यों बने हैं, बेसिकली जो पॉवर्टी है, जो लोग औरतें जो काम कर रहे हैं ना, उन कहीं ना कहीं उनकी इनकम बढ़ा है, तो बेसिकली उनका कहीं ना कहीं पॉवर्टी लेवल कम हुआ है। ओके, और ये एसएचजीज का सबसे बड़ा फायदा है, ये उनको प्रोविजन करता है इजी क्रेडिट, मीन्स उनको जब भी कभी भी लोन मिलेगा तो उनके लिए बैंक है जिसके थ्रू वो ले सकते हैं। सॉरी मेरा ध्यान ही नहीं घड़ी की तरफ बताते बताते एग्जांपल। आई विल जस्ट फिनिश दिस पीपीटी एंड देन विल स्टॉप। ओके, सॉरी, दिस चैप्टर मींस दिस सिलेबस इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग। देन एम्पावर द पर्सन मीन्स यहाँ पे जो भी लोग हैं, जेंट्स हो लेडीज हो, इनको एम्पावर करना, फैमिलीज को एम्पावर करना, themselves to capable of playing an important role in socio-economic development. Socio-economic development means what? सोसाइटी लेवल पे इकोनॉमिकल मीन्स फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना, इसीलिए वर्ड है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी। मीन्स आप जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो उस कम्युनिटी में हमारा सोशली और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उस पर्सन की कैपेसिटी डेवलप करना, ये एक काम है एसएचजी का। दूसरा एक सबसे बड़ा जो एम है इसका वो है to play an important role to enhance the capacity of self-reliance. Self-reliance means what? खुद को खुद के लिए पैसा कमाना, ये चीज एसएचजी बनाती है हर मेंबर के लिए। इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, जैसे आप किसी कारपोरेट में काम करते हो तो आपका बॉस जो है ना, वो आपको बताते हैं कि ये कर वो कर, उसके ऊपर उसका जो बॉस बैठा है ना बाप, वो उसको डायरेक्शन देता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, सब मिलके डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे एक किसी का नहीं चलेगा, सब अगर एग्री हो गए पक्का डेफिनेटली इनोवेशन या फिर जो स्टार्ट है वो एक लेडी या फिर एक जेंट्स करेगा, बट सबका डिसीजन हाँ होगा तो ही वो इम्प्लीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, देन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो एसएचजी है वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल ऑफ मार्जिनलाइजिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम, मीन्स उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाता है ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए, उनका इनकम बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये एक मेजर एम्स है जिसकी वजह से बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने और बनाने के लिए इंडिया प्रमोट कर रहा है। Okay, so today we will stop here. Okay, and tomorrow means day after tomorrow I hope I am having a session. So on that day I will give you that example of a village. Do visit please to that village. Okay, then we'll stop here. Thank you all of you. I hope you are not having question. Any question? Hello. Any question? Okay, Suraj is writing no. Okay, then we wind up here. Thank you all of you and take your food. Chalo, bye. Take care. Stay healthy.